Hello students, you are welcomed to the video lecture series of discrete structures and theory of logic. In this video lecture, we will discuss partial order set or we can call it POSET. So first in this video lecture, we are going to discuss what is POSET and इसके अलावा हम कुछ और भी concept हैं जो इस video lecture में देखेंगे, that is comparable set, what is immediate predecessor and what is immediate successor. So we will discuss all this in detail. So, what is POSET? कोई भी नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद अ बाइनरी रिलेशन R is said to be partial order set. अगर कुछ पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन हम उसे बोलेंगे पोसेट. सो व्हाट द डेफिनेशन सेज, अ नॉन एम्प्टी सेट A together with a binary relation R is said to be partially ordered set or a poset if following conditions are satisfied. So what are the conditions? First condition is reflexivity. What is reflexivity condition? Reflexivity says that if any element belongs to a set A, let's say कोई element है जो कि capital A set को belong कर रहा है जो कि हमारा non empty है, तो अगर A is related to itself, यानी कि A is related to A, then it will be the reflexive property. So first one postulates or first one axiom is reflexivity for poset. Second is P2 is antisymmetry. Antisymmetry says if A और B आपके दो एलिमेंट है कैपिटल A सेट के, then if A are B and B are A is related to B and B is related to A, if ये कंडीशन होल्ड होती है then उस केस में A और B आपके बराबर होने चाहिए. This is antisymmetric property. And the last one is third is transitivity. So what is transitivity? If A, B and C belongs to A, तो उस केस में if A is related to B and B is related to C, it will imply that A is related to C. So together with the relation R, this set A will be called a poset if these three conditions are satisfied. And condition is first is reflexivity, second is antisymmetry and third is transitivity. Right? So अगर ये तीनों conditions हमारी satisfy होती हैं किसी भी empty set A together with binary operation, binary relation R, तो उस केस में उस set को हम बोलते हैं poset या फिर partial order set. So what the definition says, the relation R on set A is called a partial order relation and denoted by AR or A comma this symbol, this is less than equal to, इसे हम partial order set से denote करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं A comma partial order set का symbol. So हम इसे denote करते हैं partial order relation से and जो हमारा set है ये कहलाएगा partial order set और poset. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल से देखते हैं हम. एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका पोसेट का. लेट से कोई एस एक सेट है आपके पास, राइट. एस में बहुत सारे सेट्स का कलेक्शन है, राइट. एक एस सेट है जिसमें भी सेट्स का कलेक्शन है. सो रिलेशन दिस वन इज सबसेट ऑफ, इस रिलेशन को हम बोलते हैं इस सबसेट ऑफ, इस रीड एज इस सबसेट ऑफ इस पार्शियल ऑर्डरिंग ऑफ एस. हमें ये शो करना है कि ये पार्शियल ऑर्डर सेट कहलाएगा. एस वाला जो सेट है वो पार्शियल ऑर्डर कहलाएगा. सो सबसे पहले हम देखते हैं पार्शियल ऑर्डर के लिए हमें तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी. सो फर्स्ट वन वाज रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब आपका सेट ए, क्योंकि हमें पता है कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, राइट. सो वी कैन से ए इज सबसेट ऑफ ए इटसेल्फ फॉर एनी सबसेट ए ऑफ एस. अगर हमने लिया, क्योंकि ए एस क्या है, एस बहुत सारे सेट्स का कलेक्शन है, तो हमने एस का एक सबसेट ले लिया, दैट इज ए. एस का सबसेट है ए और हम कह सकते हैं कि ए is a subset of itself. So reflexive condition holds true. Next is antisymmetric. Antisymmetric property says, let's say आपने S के दो सबसेट ले लिए A and B. If A is subset of B and B is subset of A, तो क्या होता है कि अगर दोनों ही एक दूसरे के सबसेट हैं तो ये कंडीशन तभी होल्ड कर पाएगी जब आपके ए और बी बराबर है. तो वी कैन से देन ए इक्वल टू बी. इट मींस ये जो सिंबल है, ये जो ऑपरेशन है आपका, जो हमने रिलेशन डिफाइन किया है इस सबसेट ऑफ, सो इस सबसेट ऑफ इज एंटीसिमेट्रिक, राइट. एंटीसिमेट्रिक भी होगा. थर्ड चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी के लिए. सो लेट्स से हमने एस के तीन सबसेट लिए ए बी एंड सी. सो हमने कहा इफ ए is subset of B and B is subset of C for any set, किसी भी सेट के लिए A B C belongs to S, then उस केस में then A equal to C. A आपका A और C, A भी आपका सबसेट होगा C का. We can say A is also a subset of C.
सो इस केस में हम बोल सकते हैं कि देन एस दिस ऑपरेशन इज अ कोसेट, बिकॉज आपका रिफ्लेक्सिव भी है, एंटीसिमेट्रिक भी है, एंड थर्ड इज ट्रांजिटिव भी है, राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी है, राइट। क्योंकि अगर आप हम क्लियरली बोल पाते हैं कि अगर आपका ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करें, ए आपका बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो हम कह सकते हैं कि ए सी का सबसेट होगा, राइट। आई होप ये आपको क्लियर होगा पोसेट क्या होता है। नाउ वी विल सी Now we will see another example that is given as, let's say A equal to 2, 3, 6, 12, 24, 36. This is a set and R be a relation in A. R एक relation है A set में which is defined as A divides B, right? A जो relation given है वो आपको A divides B का दिया है. Then आपसे कहा है then R is partial order in A, right? ये आपको show करना है, यानी कि we have to prove that this one A आपका जो set है together with आपका दिस ऑपरेशन डिवाइड, राइट, ये आपका एक पोसेट कहलाएगा. हमें ये प्रूव करना है ए सेट टुगेदर विद दिस ऑपरेशन ए डिवाइड्स इज अ पोसेट, राइट. हमें ये शो करना है. तो हम किस तरह से शो करेंगे? सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए. सो हम कह सकते हैं कि ए डिवाइड्स ए इटसेल्फ. कोई भी एलिमेंट अपने आप को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है. तो वी कैन से दिस इज रिफ्लेक्सिव, यानी कि डिवाइड ऑपरेशन इज रिफ्लेक्सिव हेयर. नेक्स्ट एंटीसिमेट्रिक के लिए अगर हम चेक करें, अगर ए बी को डिवाइड करे और बी ए को डिवाइड करे, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों आपस में बराबर हो, यानी कि ए और बी अलग अलग एलिमेंट ना हो, दोनों सेम ही एलिमेंट हो, राइट. तो एंटीसिमेट्रिक भी होगा. एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी के लिए चेक करें, इफ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए then a equal to b, so this operation is antisymmetric also. And last one is transitivity, right. So if a divides b and b divides c, सो ए डिवाइड्स सी. इससे प्रूव होता है कि अगर ए डिवाइड करता है बी को, लेट्स से हम इस एग्जांपल से चेक करते हैं, राइट. हमने कहा 2 डिवाइड्स 6 एंड 6 डिवाइड्स 12, तो हम कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स 12, 2 डिवाइड्स 12 यहाँ पर हम बोल सकते हैं इजीली. सो हम कह सकते हैं कि रिलेशन इज ट्रांजिटिव. वी कैन राइट इट एज 2 डिवाइड्स, here we can write 2 divides 12, right. So 2 12 को divide कर रहा है, then this divide is transitive, hence we can say a comma this one operation, this relation जो divide वाला relation है, this is a poset, right. So इस तरह हम किसी भी set को poset show कर सकते हैं if we can prove that कि reflexive है, antisymmetric है and transitive भी है. आई होप ये क्लियर होगा आपको. नेक्स्ट पोसेट के अलावा अब हम कुछ छोटे छोटे टर्म्स डिस्कस करते हैं. छोटी सी डेफिनेशंस है जो इम्पॉर्टेंट है हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. सो फर्स्ट टॉपिक इज कंपेरेबल, राइट. व्हाट इज कंपेरेबल? कोई भी दो एलिमेंट आपके कंपेरेबल कहलाएंगे किसी भी सेट एस में जब आइदर ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए, राइट. यानी कि अगर आपका कोई पोसेट है एस और एस के साथ जो रिलेशन है वो लेस देन इक्वल का रिलेशन है, राइट. सो ये कंपेरेबल, कोई भी दो एलिमेंट इस सेट के कंपेरेबल कहलाएंगे ए और बी. किस केस में? इफ ए इज रिलेटेड by this operation to b or b is related to a by this operation, less than equal operation, right. For example comparable की अगर हम बात करें, हमने कहा इन अ पोसेट z+ का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट, राइट. पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट टुगेदर विद डिवाइड ऑपरेशन. तो इसमें हम अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर 3 and 9 आर कंपेरेबल, राइट. इंटीजर 3 भी पॉजिटिव इंटीजर है, 9 भी पॉजिटिव इंटीजर है, सो 3 and 9 आर कंपेरेबल सिंस 3 divides 9, right. We can say 3 divides 9 क्योंकि ऑपरेशन रिलेशन क्या है हमारा? डिवाइड का. So 3 divides 9, so 3 and 9 are comparable. But अगर हम 5 and 7 की बात करें तो 5 and 7 हमारे incomparable होंगे. Incomparable क्यों होंगे? क्योंकि neither 5 divides 7 nor 7 divides 5 कोई भी completely divide नहीं करता है. So हम कह सकते हैं 5 और 7 incomparable है, but इस केस में 3 and 9 comparable है. तो इस तरह से हम किसी भी सेट में कंपेरेबल और इनकम्पेरेबल एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट टर्म इज इमीडिएट प्रेडिसेसर एंड इमीडिएट सक्सेसर. किसी भी पोसेट में आपको इमीडिएट प्रेडिसेसर और इमीडिएट सक्सेसर अगर निकालने के लिए पूछा जाता है तो व्हाट द डेफिनेशन सेज, लेट अ पोसेट, दिस इज अ पोसेट एंड ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए. दो स्मॉल एलिमेंट हमने ए और बी लिए जो कि सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं. नाउ ए इज सेट टू बी इमीडिएट प्रेडिसेसर ऑफ बी. ए को हम बी का इमीडिएट प्रेडिसेसर बोलेंगे, या फिर
बी को इमीडिएट सक्सेसर बोलेंगे ए का, एंड इसको हम डिनोट करते हैं ए लेस देन बी, इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है A is predecessor of B, और we can say B is successor of A, right? हम इसे इस तरह से डिनोट करते हैं, A is immediate predecessor of B और B is immediate successor of A. So क्या किस 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 कंडीशन में हम ये कंडीशन बोलेंगे? If A less than B, right? And no element of A lies between A and B, right? कि A just B के B से लेस देन है और A और B के बीच में कोई भी एलिमेंट लाई नहीं करता। इट मीन्स सिंबॉलिकली अगर देखें, देयर एग्जिस्ट नो C, इट मीन्स देयर एग्जिस्ट नो C बिलोंग्स टू A, कोई भी ऐसा C एलिमेंट नहीं है जिसके लिए A और B के बीच में C आ जाए, राइट? सो ये कहलाता है हमारा इमीडिएट predecessor. A will be called immediate predecessor of B if there exists no element between A and B. So students, I hope आपको ये पोसेट एंड कंपेरेबल इमीडिएट प्रेडिसेसर एंड इमीडिएट सक्सेसर हमने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ा।